लगता है ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है कश्मीरियों के लिए, क्योंकि G20 हो रहा है, 20 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आ रहे हैं यहाँ पे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। Do you feel the change? Is there any change or no? Absolutely, there's a change. I would tell you that definitely the. Dear viewers, welcome again to Milap News Network. I'm your host Thamsil Khan. Like you already know, the G20 summit preparations are going on a very high scale and everybody is enthusiastic about it. The government and the administration is trying very hard to make sure that everything is in its place and on time. Today we talked to some locals and they told us about how they feel about the G20 summit that is going to happen this month. Let's have a look what they feel about it. What's your name? My name is Sameer Ahmed Bakhtu. What are your views on that? See, if you talk about G20, definitely our expectations are very high. But precisely speaking, when you talk about G20 and connect this with tourism, there are two different aspects to it. If you talk about promotion vis-a-vis domestic tourists, we already have a number of domestic tourists coming in abundance. So hopes are high vis-a-vis international tourists, because when you talk about G20, we expect people from different countries are going to come here, and which will boost tourism at a very, very big scale globally. It is everywhere that after the article was abrogated, the Kashmir has changed. What are your views on this change? See, I will not talk about anything which touches the politics of the place, because we are pure businessmen and we mean business. So for us, we are just common business people, or common people who, I'm a common person who goes to his office. I would just like to know, do you feel the change? Is there any change or no? Absolutely, there's a change. I would tell you that definitely the number of tourists, before we used to have apprehensions, tourists, the first thing tourists used to say is whether it's safe to come Kashmir or not. But as I told you last time as well, I've mentioned it everywhere, that now tourists are like always, do you have availability in Kashmir? What is the best time to visit Kashmir? So people don't say anymore whether it's safe to travel or not. Whatever might be the circumstances, the message has gone through. But now with G20, we're expecting that the foreign footfall would increase. सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद उबैद नज़ीर है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी G20 समिट जो है होने वाला है और इस दफ़ा इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है, और इस में हम इस वक्त इसको होस्ट कर रहे हैं, मतलब कि कश्मीर इसका वेन्यू बना है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द समिट? सबसे पहली बात तो मुझे लगता है ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है कश्मीरियों के लिए, क्योंकि G20 हो रहा है, 20 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, और एज़ वी नो कि कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी एक प्लेसेस और है जो कि अभी डिस्कस उतनी अच्छे से नहीं हो गए, जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे लगता है G20 से मेरी यही उम्मीद है कि कश्मीर को एक अच्छे से रिप्रेजेंट के तौर पे बाहर सारी कंट्रीज़ में जाना चाहिए, एक पॉजिटिव रिस्पांस के लेकर, और यही उम्मीद लेके चलते हैं हम कि जो भी 20 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ कश्मीर को एज अ टूरिस्ट प्लेस ना लेके चले, प्लस ये भी लेके चले कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल हमारी चीज़ है, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो या कुछ भी हो, तो वो सारा यहाँ से लेके चले अच्छे से। जी, मेरा नाम शेख इमरान है। ये कश्मीर को बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे सकता है, और जहाँ तक कश्मीर के अंदर इस मीटिंग के हवाले से बात हो रही है, कश्मीर को देखकर जो यहाँ पे लोग या जो बाकी कंट्रीज आएंगे, वो जब कश्मीर की सिचुएशन या कश्मीर के उन सब कामों को देखेंगे जिन चीज़ों के लिए ऑब्वियसली वो आएंगे यहाँ पे, या हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा कि वो अगर कश्मीर में आएगा वो कश्मीर को किस नज़र से देखेगा, और वो उसी तरीके से कश्मीर को अपने कंट्री के अंदर रिप्रेजेंट करेगा या कश्मीर के बारे में वहाँ पर बताएगा। मेरा नाम आकिब है और मैं यही श्रीनगर से हूँ। हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, हम चाहते हैं कि सब ठीक हो। वैसे बहुत कुछ हो रहा है G20 के आने से, काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, रोड्स वगैरह बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। इतनी तेज़ी से मैंने कभी कुछ नहीं बनते हुए देखा जितनी तेज़ी से मैंने चीज़ें बनते हुए देखी हैं। सो ठीक है, अच्छा जा रहा है। अभी तक क्या क्या बदला यहाँ पर? सारा टूरिज़्म जो था, पूरा इंडस्ट्री 95% टूरिस्ट पर है। यहाँ पूरा जो इंडस्ट्री हमारा है, रोज़गार सब टूरिस्ट पर है, तो सब अभी इंशाल्लाह बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं कश्मीर में, विज़िट कर रहे हैं, हम उनको घुमाते हैं, तो हमारा रोज़गार चलता है बहुत। हाँ, 100% से भी ज़्यादा हो गया। हाँ जी, बहुत। पिछले साल भी इतने टूरिस्ट आ गए, यहाँ रूम नहीं मिल रहे थे, परेशान हो गए टूरिस्ट। तो इस साल इंशाल्लाह अभी चल रहा है बहुत काम हमारा, तो हम ये चाहते हैं और आना चाहिए, हम उनको घुमाएगा, हमारा रोज़गार चलता है, तो ये टूरिस्ट पूरा बढ़िया
इंशाल्लाह यहाँ से ये यादगारी करेगा कश्मीर। ये शाहजहाँ ने बोला अगर फिर दोस्त भरो ये ज़मीन हम आस्तो हम आस्तो हम आस्त, अगर दुनिया में किसी जगह जन्नत है तो वह यहीं कश्मीर में है, यहीं है यहीं। विदेशियों से न अखियाँ मिलान, परदेशियों को है एक दिन जाना, परदेशियों से न अखियाँ मिलाना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, एक चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, इनमें राज है कोई गहरा। तारीफ तू क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।